A very good morning to all students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the two cases of financial leverage. The first one is a favorable financial leverage and second one is a unfavorable financial leverage. Favorable financial leverage is a condition when rate of return is more than the cost of debt, whereas an unfavorable financial leverage is a condition when cost of debt is more than the rate of return. And you know very well, an optimal capital structure will be attained when the proportion of debt and equity is such that it result is an increase in the value of equity share, that is increase in shareholder wealth. So the last topic which we discussed in the last video, that is a capital structure and cases of financial leverage, it will relate it to the financing decision of the business enterprises. Financing decision refers to the relative proportion of various sources of finance. A business has to decide the proportion of funds to be raised from sources which serves the purpose most effectively. So financing decision is a concern with how much finance is to be raised from which source. Now we will move to the next topic of this chapter, which are related to the investment decision. You know very well, the investment decision involves careful selection of the assets in which the fund are to be invested. There are basically two kinds of funds related to the investment decision, that is a long term and short term. A long term investment decision is called capital busting decision. It involves committing the finance on long term basis, whereas a short term investment are called working capital decision. These are concerned with the decision about the level of cash, inventory and receivable required to be held by the business for its smooth functioning. So today we will discuss in detail the component related to the investment decision. When we are talking about the investment decision, there are basically two kinds of decision, the capital busting decision and working capital decision. Capital busting decision is related to the fixed capital of the company and working capital decision is related to the working capital involved in the business. So let's discuss it. The fixed capital involves allocation of firm's capital to long-term assets of projects. Fixed assets are those which remain in the business for more than 1 year, usually longer, that is a plant and machinery, furniture and fixtures, land and building, etc. It provides the base for foundation of a business and absorbs the shocks of the business. यानी फिक्स कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो कि किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होती है. और फिक्स एसेट जो होती है वो जनरली बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा तक के लिए इन्वेस्ट की जाती है. जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, फर्नीचर एंड फिक्चर्स की बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें. फिक्स कैपिटल बिजनेस के लिए फाउंडेशन का काम करती है और बिजनेस को होने वाले फ्यूचर शॉक्स को ऑब्जर्व भी कर सकती है. द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग इन फिक्स एसेट्स इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. यानी जब भी हम फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो सच काइंड ऑफ डिसीजन विल बी टेकन एज द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स फॉर एक्विजिशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट. और ये डिसीजन जनरली फिक्स एसेट्स में किया जाता है, जैसे कि हम किसी एसेट्स को एक्वायर कर रहे हों, उसको एक्सपेंड कर रहे हों, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हों या फिर उसको रिप्लेस कर रहे हों. फिक्स एसेट शुड ऑल्सो बी फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. ये बात आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है कि फिक्स एसेट्स में हम पैसा तभी लगाते हैं जब हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, यानी कि जब हमारे पास पैसा अवेलेबल हो तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे पास अवेलेबल हो. दैट्स सो वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन इन्वेस्ट द investment in the fixed assets. Next is the management of fixed assets. How we manage the fixed assets? Fixed capital. Management of fixed capital involves allocation of firm's capital to different projects or assets with a long term implication for the business. यानी कि अगर हम फिक्स एसेट्स की मैनेजमेंट की बात करें कि हाउ टू मैनेज द फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल जनरली फर्म्स की कैपिटल को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट्स में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एलोकेट किया जाता है. दिस डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन.
और ये डिसीज़न हमारे बिजनेस के ग्रोथ पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे एज वेल एज रिस्क पे बिजनेस को लॉन्ग टर्म वे में इफेक्ट करता है. द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजट डिसीजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन. If we are talking about the investment in the fixed capital और द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सो इसकी इंपॉर्टेंस हम खुद कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं जो डिस्कस किया गया है. सो लेट्स डिस्कस इट. द फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म ग्रोथ. These decisions have bearing on the long-term growth of the business. The fund invested in long-term assets are likely to be yield return in future. These will affect the future prospects of the business. यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें कि अगर कोई कंपनी अपना शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि वो लॉन्ग टर्म यानी दूर का देख रही है, इट मीन्स लुकिंग फॉरवर्ड और काफ़ी फ्यूचर का सोच के चल रही है, तो उसके लिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल डिसीजन. बिकॉज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल एक ऐसा डिसीजन है जो बिज़नेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इफेक्ट करता है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उससे मिलने वाला रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलता है. द नेक्स्ट वन इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व्स. These decisions result in a substantial portion of the capital fund being blocked in long-term projects. Therefore, these investments are planned after a detailed analysis is undertaken. This may involve decisions like where to procure fund from and at what rate of interest. So ये भी important part है कि जब भी हम फिक्स कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो लंबे समय तक उस इन्वेस्टमेंट में ब्लॉक हो जाता है वो पैसा. यानी अगर हम अपनी कैपिटल का कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं यानी फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक लंबे समय के लिए उस प्रोजेक्ट्स के लिए उस एसेट्स में ब्लॉक हो जाता है. सो इस इन्वेस्टमेंट करते वक्त प्रॉपरली पहले से प्लान कर लेना चाहिए और इस डिसीज़न को लेने से पहले हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इन फिक्स कैपिटल वो पैसा किस फंड से आया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ताकि हम उसका प्रॉपरली एनालाइज कर सकें और ये पता कर सकें कि हमें जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल सकता है. द थर्ड वन इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व. फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट. It affects the returns of the firms as a whole in long term. Therefore, investment decision involving fixed capital influence the overall business risk of the firm. If you are talking about the risk, so fixed capital में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. तो पहली बात ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होती है और लॉन्ग टर्म वे के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है. सो लंबे समय के लिए वो पैसा ब्लॉक भी हो जाता है. सो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिज़नेस की ओवरऑल रिस्क को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है. द फोर्थ वन, द इरिवर्सिबल डिसीजन. दीज डिसीजन वंस टेकन आर नॉट रिवर्सिबल विदाउट इनकरिंग हैवी लॉस. abandoning a project after having investment is quite costly in terms of wastage of funds. Therefore, these decisions should be taken only after careful evaluation. अगर हम फिक्स कैपिटल डिसीजन की बात करें तो फिक्स कैपिटल डिसीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिकॉज इट इज़ अ इरिवर्सिबल डिसीजन, क्योंकि इस डिसीजन को बाद में रिवर्स नहीं किया जा सकता. इसे हम रिवर्स तभी कर सकते हैं जब हम हैवी लॉस बियर करने के लिए प्रिपेयर हों. सपोज़ अगर हमने किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, बट ड्यू टू सम रीज़न हम उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो अगर हम उस पैसे को विड्रॉ करेंगे तो पहली तो बात, जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो पूरा रिटर्न आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं. दूसरा ये लॉस होता है कि जितने महीने या जितने दिन के लिए मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है उतने महीने का मुझे कोई इंटरेस्ट या कोई भी रिटर्न नहीं मिलता. सो अगर हम बात करें तो फिक्स कैपिटल डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर एवरी बिजनेसमैन, बिकॉज इसमें पैसा जो होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें हम लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखकर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. सो दे आर बेसिकली 4 रीज़न विच प्रूव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और द fixed capital decision. That is a long term growth. Second is a large amount of fund involved. Third one is a risk involved, and number 4 is the irreversible decision. The next topic of this chapter, that is a factor affecting the requirement of fixed capital. जब हम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यानी एक फर्म को कितनी फ़िक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, यू नो वेरी वेल कि जब हम पैसा अरेंज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं,
तो प्रोक्योर करते समय वी डिसाइड द नेचर ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कितना पैसा ओनर से आएगा, कितना पैसा बोरोड से आएगा। उसी तरह से जब हम पैसे को इन्वेस्ट की बात करते हैं तो इन्वेस्ट करते समय हमारे दो ऑप्शन होता है, वी हैव अ टू ऑप्शन, कि हम पैसे को फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करें कि वर्किंग कैपिटल में। सो जब हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो वहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए अफेक्ट करते हैं, एज वेल एज जब हम पैसे को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी प्रोजेक्ट्स में या एसेट्स में लॉन्ग टर्म वे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे उस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। सो द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आर डिस्कस पहलो। द नंबर वन इज द नेचर ऑफ बिजनेस। The type of a business has a bearing upon the fixed capital requirements. A trading concern needs lower investment in fixed assets compared with a manufacturing organization, since it does not require to purchase plant and machinery etc. If we are talking about the nature of the business, so you know very well, business का जो nature है वो कहीं ना कहीं हमारे फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है जहाँ सामान को खरीदना है और तुरंत बेच देना है, वहाँ कोई प्रोडक्शन की बात ही नहीं है, सो वहाँ फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें जहाँ सामान को बनाना है एंड देयर आफ्टर उसको बेचना है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बेसिस पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको लैंड एंड बिल्डिंग की ज़रूरत है, उसे प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत है। सो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एज वेल एज फॉर द ट्रेडिंग कंसर्न को लोअर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है फिक्स कैपिटल में। द सेकेंड वन इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन। अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट अ लार्जर स्केल नीड्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एज कम्पेयर टू द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर हम बिजनेस की स्केल को मेज़र करें, मीन्स उसका बिज़नेस का साइज़ क्या है, अगर उस बिज़नेस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो वहाँ पे उसे हायर फिक्स कैपिटल की आवश्यकता होती है। वेयर एज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल कंपनीज, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। सो बिजनेस का स्केल लार्ज एंड स्मॉल भी हमारे फिक्स कैपिटल के डिसीजन को इफेक्ट करता है। द थर्ड वन इज द चॉइस ऑफ टेक्निक्स। You know, there are basically two types of techniques of the production. The first one is a labor intensive and second is a capital intensive. पहले हम लोग टेक्निक्स को डिस्कस कर लें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे कंपनी लेबर पे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए लेबर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। वेयर एज अ कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, कंपनी जो होती है वो लेबर पे ज़्यादा डिपेंड ना होकर बल्कि मशीन पे ज़्यादा डिपेंड करती है, या फिर कह सकते हो लेबर पे डिपेंड नहीं करती। सो अगर हम चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करें तो अगर कोई कंपनी लेबर इंटेंसिव होती है तो वहाँ पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, उसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है। सो उसके लिए उसकी सैलरी देना है, वेजेस देना है, सो उसको फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई कंपनी कैपिटल इंटेंसिव है तो उसे हाई लेवल के इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लांट एंड मशीनरी पे, ताकि वो लेबर को कम कर सके, क्योंकि वहाँ लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी, वहाँ मशीनरी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। सो मशीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। सो चॉइस ऑफ द टेक्निक्स, दैट इज़ द कैपिटल इंटेंसिव एंड द लेबर इंटेंसिव, ये भी डिसाइड करता है कि कंपनी का फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव है तो उसे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेबर को वेजेस एंड सैलरी देना है जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो उसे फिक्स कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ लेबर पे ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी नहीं होती। सो सिचुएशन में अगर हम फाइंड आउट करें तो लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यानी वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत ना होकर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट वन इज़ अ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। In certain industries, assets become obsolete sooner. Consequently, their replacement becomes due faster. Higher investment in a fixed asset may therefore be required in such cases. Companies become obsolete faster and are replaced with much sooner than, say, furniture. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी कि हर 6 महीने 8 महीने या 10 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, यू नो वेरी वेल, हमें अपनी फिक्स एसेट्स को चेंज भी करना पड़ता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सो रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फिक्स कैपिटल की आवश्यकता होती है। सो वी कैन से डैट
अगर हमारे इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की काफ़ी तेज़ है तो वहाँ फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की रेट ज़्यादा होगी। अगर जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या अदर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इक्विपमेंट, अगर हम उन पे बात करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन काफ़ी तेज़ होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्नीचर। अगर कंपनी ने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात नहीं हो रही है। सो डिपेंड करता है कि कंपनी किस नेचर की है। अगर वो टेलीकॉम से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनीज़ है तो वहाँ पे उसे फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी बिकॉज वहाँ हमेशा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम चलता रहता है, तो उन्हें फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट टू टेक अ decision regarding the fixed capital. The next one is a growth prospectus. Higher growth of an organization generally requires higher investment in the fixed assets. Even when such growth is expected, a company may choose to create higher capacity in order to meet the anticipated higher demand quickly. This entails larger investment in fixed assets and consequently larger fixed capital. अगर हम ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर हाई ग्रोथ चाहता है तो उसे अपने फिक्स एसेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, यानी वो चाहता है कि मार्केट में उसका शेयर बढ़े, मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, तो डिमांड बढ़ाने के लिए उसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उसे मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मशीनरी के लिए एट द लास्ट हमें लार्जर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फिक्स कैपिटल में। The next one is a diversification. It is a very important part. Diversification means when a company wants to enter into a new business other than that of its current product, it requires more fixed capital. जैसे अगर कोई कंपनी है वो ऑलरेडी किसी एक प्रोडक्ट में वर्क कर रही है और वो मार्केट में कई सारे और बिजनेस के साथ इंटर लेना चाहती है, सो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एन apparel company diversifying into cosmetic business will certainly require more fixed capital for investing into the plant and machinery and building. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज हिमालय कंपनी, यू नो वेरी वेल, हिमालय कंपनी, हिमालय ने मेडिसिन के फील्ड में भी वर्क किया है एज वेल एज मान लीजिए कॉस्मेटिक में भी किया है। सो अगर वो मेडिकल के फील्ड में वर्क कर रही है और वो चाहती है कि उसका कॉस्मेटिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, तो यू नो वेरी वेल कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें हैं, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू इंटर इनटू अ न्यू बिजनेस अदर देन ऑफ इट्स करंट प्रोडक्ट, यानी वो जो करंट प्रोडक्ट में डील कर रही है उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा और प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। द नेक्स्ट वन इज़ अ फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स. If alternative of leasing or hire purchase are available, the assets are not to be purchased outrightly, but only rent or installment have to be paid. This is reduce the requirement of fixed capital. You know very well there are various kind of alternative of financing. अगर we have a two option, every company have a two option. एक ऑप्शन होता है कि वो मशीन को परचेस कर ले, या दूसरा ऑप्शन होता है मशीन को रेंट पे ले ले या लीज पे ले ले। तो उसी तरह से अगर कंपनी के पास ये अल्टरनेटिव्स है, कंपनी हैज़ अ ऑप्शन टू टेक अ मशीन ऑन रेंट, सो इन दिस सिचुएशन कंपनी को ज़्यादा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अगर हम बात करें फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स की, हमारे पास फिक्स एसेट्स को अरेंज करने के कई अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि हम रेंट पे ले लें, इंस्टॉलमेंट पे ले लें। सो कहीं ना कहीं हमें फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, यानी करंट ईयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कम करना पड़ता है। एज अ होल ज़रूर हमें वो महंगा पड़ता है, लेकिन पार्ट में हमें पे करने में वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो जाता है। ओके, सो फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स मीन्स कि अगर एसेट्स ख़रीदने के लिए बिजनेस इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उस एसेट्स को हायर करना चाहता है, लीज करना चाहता है। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ अ लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. The collaboration between the organization to use one other facilities, the assets reduce the need for fixed capital. That is, banks are using each other's ATM, the saving on individual setting of ATMs by each bank, which entails huge expenditure. Yes, लेवल ऑफ कोऑपरेशन का मतलब होता है मिल के काम करना। जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिल के किसी एक मशीन को, किसी एक फिक्स को दोनों लोग इक्वली या दोनों लोग
एक साथ उसको यूज़ कर सकते हैं अपने अपने पर्पज़ के लिए, तो वो कहीं ना कहीं दोनों कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है और दोनों कंपनी के लिए कॉस्ट रिड्यूसिंग मोमेंट होता है। सो दोनों कंपनी को अलग अलग उस एसेट्स को खरीदने की जगह एक ही एसेट्स होती है, जब उसको ज़रूरत है वो यूज़ करे, जब उसको ज़रूरत है वो यूज़ करे। जैसे वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू द बैंक, यू नो वेरी वेल बैंक ATM की फैसिलिटी देता है, तो बैंक के ATM का यूज़ जैसे SBI बैंक का ATM है, तो यूनियन बैंक का ATM होल्डर भी जाकर उस ATM से पैसा निकाल सकता है। सो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि SBI बैंक का अकाउंट होल्डर SBI के ATM से ही पैसा निकाल सकता है और यूनियन बैंक के ATM से ही पैसा निकल सकता है। सो अगर ऐसा सोचिए तो हर जगह पर इतने ज़्यादा ATMs होते हैं, हर बैंक के अपने अपने ATMs होते हैं, तो हर बैंक को अपना अलग अलग ATM मशीन ख़रीदना पड़ता, अलग अलग उसको इंस्टॉल करना पड़ता, अलग अलग उसको फैसिलिटेट करना पड़ता, मॉनिटर करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं सारे बैंक्स की जो कॉस्ट होती वो काफ़ी बढ़ जाती। फाइनेंशियल एसेट्स फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ जाता। जहां वो 50 ATM के साथ एक सिटी में वर्क कर सकते हैं, वहां उन्हें लगभग 500 ATM भी लगाना पड़ सकता था अगर ईच बैंक की अगर हम बात करें। सो लेवल ऑफ कोलेब्रेशन मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी फैसिलिटी को दूसरे को यूज़ करने को देता है और दूसरा वाला भी अपनी एसेट्स को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करने को देता है। सो बेसिकली ATM का यूज़ क्यों हो रहा है? कंपनी की फैसिलिटी को, बैंक की फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। सो लेवल ऑफ कोलेब्रेशन कहीं ना कहीं, यानी मिल के काम करना, कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को कम करता है। Now we will move to the next topic, that is a working capital. You know very well, if a company wants to invest the money, it has a two option, that is a investment in the fixed capital and number two is a investment in working capital. So working capital decision is also a important decision as related to as compared to the फिक्स कैपिटल डिसीजन। यानी कि अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है तो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना होता है। सो लेट्स वी डिस्कस दी वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल मीन्स द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। द टर्म्स वर्किंग कैपिटल मीन्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है, बेसिकली अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो एक कैपिटल का वो पार्ट, बिजनेस की कैपिटल का वो पार्ट जो बिजनेस में वर्किंग मोड में इन्वेस्ट होता है। और जनरली हम अगर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल को तो उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज नंबर वन इज अ ग्रॉस एंड नंबर टू इज अ नेट वर्किंग कैपिटल। What is a gross working capital? Gross working capital means current assets and net working capital means current assets minus current liabilities. So I hope it is clear. Gross working capital equals to the total of current assets and net working capital means the current assets minus current liabilities. So we can say the formula, the net working capital equals to current assets minus current liabilities. So what is current assets? You know very well. The term current assets refers to those assets held in a business which can be converted into the form of cash within a period of 1 year. These assets are more liquid but less profitable. Example of current assets in order of liquidity, that is cash in hand, cash in bank, marketable securities, bills receivable, debtors, fixed assets, finished goods, inventories, work in progress, raw materials and prepaid expenses. यानी current assets वो assets होती हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं और उसे हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी दिस डेफिनेशन इज ऑलरेडी डिस्कस इन द अकाउंटेंसी क्लास 11th कि व्हाट इज करंट एसेट, एनी एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर विच इज़ नोन एज करंट एसेट्स। और ये एसेट्स ज़्यादा लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और उसका एग्जांपल देखें तो कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। So next one is a current liability. Current liability, it refers to those liability which are to be paid off during the time span of 1 year. These are to be paid out of the current assets. Current liabilities क्या होती है कि कोई भी liability जिसे हमें एक साल के अंदर पे करना है, यानी टाइम स्पेन क्या होता है एक साल का, यानी करंट अकाउंटिंग पीरियड में जो पैसा हमें दूसरों को देना है, दैट इज नोन एज करंट लाइबिलिटी। ओके,
एंड ये हम पैसा कहाँ से देते हैं, अपनी करंट एसेट में देते हैं. करंट लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग साइकिल. व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स इट इज़ अ टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू सेल्स रियलाइजेशन. यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जो कब से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से सेल्स के रिलेशन पे. यू नो कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब हमारे पास कैश होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी परचेज दी प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद फिर हम उससे रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं. रॉ मटेरियल के बाद वो कुछ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर उसको सेल करते हैं. सो ऑपरेटिंग पीरियड मतलब सामान को रॉ मटेरियल में ख़रीदने से लेकर उसको बेचने तक, यानी जब पैसा में रियलाइज़ हो जाए, विच इज़ नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल. यानी व्हाट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल इज़ अ टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू सेल्स रियलाइजेशन. It is a time gap between production of goods and realization of sales. The operating cycle is different for different firms depending upon their size and nature of the business. Yes, कि हर बिजनेस का साइज़ और नेचर ये डिसाइड करता है कि उसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है. जनरली अगर हम बात करें तो हर बिज़नेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो 1 साल का है, उससे ज़्यादा का नहीं होता. लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल का जो साइज़ है, यानी मंथ, वो कितने मंथ का होगा, वो कितने टाइम का होगा, वो डिपेंड करता है बिजनेस के साइज़ एंड नेचर पे. जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ऑपरेटिंग साइकिल में बी डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंसर्न. यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करेंगे तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होगा क्योंकि उसको सामान बनाना होगा, देर आफ्टर उसको बेचना होगा. लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न को क्या होगा, सामान को खरीदो, थोड़ी बहुत चेंजेस करो एंड देर आफ्टर उसको सेल कर दो. सो द वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल. अगर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होगा तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी. लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होगा तो कहीं ना कहीं उसे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होगी. द नेक्स्ट वन इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो लेट्स डिस्कस इट. The number one, nature of business. A trading organization and a service industry firm usually needs a smaller amount of working capital as compared to the manufacturing organization. यानी अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी. द नेक्स्ट वन इज़ द स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर कोई भी बिज़नेस लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है तो उसे लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर कोई बिज़नेस स्मॉल स्केल पर, लोअर स्केल पर प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी. द नेक्स्ट इज़ द बिजनेस साइकिल. डिफरेंट phases of business cycle affect the requirement of working capital by a firm. In a case of boom, the sale as well as production is likely to be larger. Therefore, a large amount of working capital is required. Against this, the requirement of working capital will be lower during the period of depression since the sales will as well as production will be less. यानी अगर कोई कंपनी बहुत ही टॉप लेवल पे चल रही है, बूम पीरियड में मतलब प्रॉस्पेरिटी पीरियड में है, तो जाहिर सी बात है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना पड़ेगा. सो कहीं ना कहीं जो हमारा जो बिज़नेस साइकिल है, यानी बूम पीरियड, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन हमारे वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को डिसाइड करता है. यानी अगर वो प्रॉस्पेरिटी पीरियड में है तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, डिप्रेशन में है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. द नेक्स्ट वन इज़ द सीजनल फैक्टर. अगर सीज़न चल रहा है तो वहाँ पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और सीज़न नहीं चल रहा है तो उसे प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी सीजनल, जैसे फॉर एग्जांपल वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा कब होती है, विंटर में. सो विंटर में सब वुलन क्लॉथ का प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए. सो सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. प्रोडक्शन साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्शन साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ सेल्स. तो अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा तो उससे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर प्रोडक्शन साइकिल कम होगा, यानी ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कम होगा, तो उसे कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. क्रेडिट अलाउड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. व्हाट इज़ क्रेडिट अलाउड? डिफरेंट फर्म अलाउड डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर. दिस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ competition that a firm faces, upon the level of competition as well as the credit worthiness of their clients. A liberal credit policy result in higher amount of debtors, increasing requirement of working capital.
यानी अगर हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अलाउड करें, क्रेडिट अलाउड मतलब लोगों को क्रेडिट देना, उधार देना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधार देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटर बनेंगे हमारे। वो डिपेंड करेगा कंपटीशन में। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सामान बिक ही नहीं रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि सामान कैश में बिक जाए, उधार में बिक जाए ताकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो क्रेडिट अलाउ करते हैं। सो मार्केट में अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो क्रेडिट अलाउ करना ही पड़ता है। सो वहाँ मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। वहीं डिपेंड करता है क्रेडिट अवेल पे। अगर मार्केट में क्रेडिट मिल रहा है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट कम होती है। यानी हमें मार्केट से क्रेडिट मिल रहा है तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। यानी हमें ऐसे लोग भी हैं जो मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन सप्लायर अगर हमें क्रेडिट दे रहा है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट पे सामान दे रहा है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि हम उस गुड्स उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाकर बेच के पैसा आकर फिर उस पैसे को पे कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर रॉ मटेरियल ईज़िली और आसानी से अवेलेबल है तो हमें स्टॉक कम रखने की ज़रूरत पड़ती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवर स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम है। लेकिन अगर कोई रॉ मटेरियल ऐसा है जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जो स्केयर नेचर का है और नॉट रेडीली अवेलेबल, सो इन दिस सिचुएशन हम उसका हाई स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। द नेक्स्ट इज़ टाइम लैग। ये टाइम लैग क्या है, प्लीज़ लिसन केयरफुली। It is also known as the lead time, and it is an important factor to how much working capital is required. The time lag is time taken between the placement of order and actual receipt of material. ये बात याद रखिएगा। टाइम लैग का मतलब क्या है, टाइम कब से कब तक का, जब आपने ऑर्डर दिया और जब वो सामान आपको मिला। जनरली आप देखते हैं कि सामान जब आप होलसेल में मंगाते हैं तो आज आपने उस सामान को ऑर्डर किया तो सामान आने में आपको 4 से 5 दिन का वक्त लग जाता है। सो अगर टाइम लैग काफ़ी लंबा है, अगर आप फ़ॉरेन से सामान मंगा रहे हैं और उसमें मिलने में 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता लग जाता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल रखने की ज़रूरत भी पड़ेगी, स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पता है कि आपको एक्स्ट्रा 5 दिन, एक्स्ट्रा 10 दिन का सामान लेकर अपने पास स्टॉक रखना है महीने का या साल भर, जो भी वॉटेवर जो भी टाइम हो। तो टाइम लैग अगर बड़ा होता है, यानी लीड टाइम ज़्यादा होता है, यानी ऑर्डर करने का टाइम और सामान मिलने के बीच का टाइम काफ़ी लंबा होता है, सो उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप टुडे विल कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दैट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोगों ने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। एंड टुडे वी विल डिस्कस्ड, टुडे वी आर डिस्कसिंग द 2 important topic related to the financing decision. The first one is a management of fixed capital and management of working capital, as well as we discuss the factor affecting the fixed capital decision and working capital decision. So I hope today we discussed all the topics very easily. Apart from this, if you have any kinds of doubt related to this topic, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.